Okay, so this is one of the problem given to us again, and now we are having a bigger problem as compared to the previous one. So can we draw this, can we design or formulate a mathematical model using this information? Yes, sir. Yes, sir. So let's start. First of all, you should understand there are three products. Yes. There are three products produced by a company A, B, and C. Okay. And each of the product is to be processed through three departments. Then only it is ready for sale. Each of the product is ready. Each of the product is only ready whenever it is passes through three departments. Okay? Like fabrication, then finishing, and then packaging. तभी वो प्रोडक्ट सेल के लिए मार्केट में अवेलेबल होता है. ठीक है. सो प्रोडक्ट ए रिक्वायर्स 3 hours of fabrication, 4 hours of finishing, and 2 hours of packaging. And when it is ready, it gives you a profit of ₹5 per unit. ठीक है. बताइए, क्लियर है? Yes, sir. Similarly, product B requires 5 hours of fabrication, 4 hours of finishing, and 4 hours of packaging, and it will give you a profit contribution that is maximum out of these three is ₹10 per unit. Similarly, product C requires 2 hours of fabrication, 4 hours of finishing, and 5 hours of packaging, and it will give you a profit of ₹8 per unit. ठीक है. So clear, this information is clear. Yes, sir. Yes, sir. And along with that, fabrication department is having few limitations, and each of the department having few limitation of resources. Like fabrication department में जो machine है that can work only 60 hours in a particular time duration, maybe a week or maybe a month, whatever. Similarly, finishing department is having 72 hours available. Packaging department can work 100 hours. Okay, this is a limitation of resources because of the machine, because of the man available at these department. So these are the available hours. So within these available hours, you are expected to draw a solution where it is to be find that how many units of A, B, C to be produced, so that your profit is to be maximum. अब जरा एक क्वेश्चन को पूरा एक बार देखिए ढंग से, कि समझ में आ रहा है क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है. ठीक है, तो एक बार जरा ढंग से देखिए. हाँ जी, क्लियर है? आगे चलें. Yes, Yes, sir. sir. I think some of you may have done it also. Yes, sir. Yes, sir. Ayush, आयुष सिंह, Yes, sir. रिसेंटली ज्वाइन. बेटा लेट मत हुआ करो, ठीक है, टाइम से आया करो, क्योंकि ना ये क्लास में फिर मिस हो जाता है. 5-10 मिनट ऐसे ही निकल जाते हैं, Yes, sir. लास्ट के 5-7 मिनट ऐसे निकल जाते हैं. इफेक्टिवली देयर इज नथिंग. सॉरी सर, अगली बार नहीं होगा. जी, क्या कह रहे हैं आयुष? सर अगली बार से टाइम पे आ जाएंगे. श्योर. आप भी और मैं भी, मतलब आई एम ऑल्सो, मुझे भी अपने आप को कहीं ना कहीं ये करना है कि मैं भी टाइम पे और आप भी टाइम पे हो, बिकॉज यू एंड मी वी आर हियर टू गेन समथिंग आउट ऑफ दिस सब्जेक्ट. ठीक है, मैं भी कुछ आपसे सीखता हूँ रोज और आप भी मेरे से कुछ सीखते हैं. चलिए, सो लेट अस अज्यूम दैट x1 quantity of A, x2 quantity of B and x3 quantity of C is to be produced. मान के चलते हैं इतनी क्वांटिटी हम प्रोड्यूस करने वाले हैं. Now let me
help? Let me help you to draw this particular. कुछ लोगों ने बनाया नहीं, अभी शुरू किया है. कहां से शुरू करेंगे? सर मैक्सिमाइज जेड ऑब्जेक्टिव से. Objective. Okay, so let us assume first of all, yes, the first is objective function. Objective function is z equals to कितना था प्रॉफिट? 5x1 plus 10x2 5, 10 plus and 8. 8x3. 5, 10 and 8. फाइव, 10 and 8. ठीक है, इसको मान ले जाएंगे. एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बिकॉज आई हैव टू स्विच ऑन अनदर स्क्रीन. यस, so 5x1 plus 10x2 plus 8x3. ठीक है, and this is to be maximize or minimize? Maximize or Maximize. now write subject to. ये आपको ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसे लिखा मिलेगा S2 मतलब होता है subject to. Whenever we are going to write constraints, first of all we should write subject to. अब क्या क्या constraints हैं एक बार देख लेते हैं. Constraints हमारे पास जो हैं, okay, constraints हैं fabrication hour. First constraint is fabrication hour. Second finishing. Third is packaging. तो fabrication hour में देखिए, अगर आप एक यूनिट ए का बना रहे हैं तो it requires 3 hours of fabrication. Similarly, if you are making x1 unit of A, तो कितना कंज्यूम कर लेंगे fabrication hours का? 3x1 है ना. तो क्या कंस्ट्रेंट बनेगा ये फर्स्ट कंस्ट्रेंट? 3x1 plus 5x2 plus 2x3. 3x1 plus 5x2 है ना. ये इसको लेके बनेगा, फर्स्ट कंस्ट्रेंट इसको लेके बनेगा, है ना. तो वी शुड राइट इट एज हियर 3x1, जरा बोलिए 3x1 plus 5x2 plus 2x3. लेस देन इक्वल्स टू 60. ये बात क्लियर है सबको कि लेस देन इक्वल टू 60 क्यों हुआ है? बिकॉज दिस इज लिमिटेड अवेलेबल आवर्स. वी कैन नॉट यूज बियॉन्ड these available hours. We cannot use 61, but we can use 59, 58, 57, whatever, even 60 also, but we cannot use 61. ठीक है, so that is why it is to be kept as less than equals to. Second thing, finishing hours. So 4x1, 4x2, 4x3 less than equals to 72. यही बनेगा? Yes sir. Yes, sir. ठीक है, and this is called fabrication hours. This is finishing hours. Now the third one is packaging hours. So packaging के लिए क्या क्या है information? So बताइए. 2x1 plus plus 4x2 4x2 plus 5x. plus 5x3 less than 2, equal 4, to 5. 100. 2, 4, 5 less than equals to 100. और लास्ट में क्या लिखना चाहिए मुझे? नॉन नेगेटिव. वो क्या होता है? All these variable must be non-negative. So this is how we can write this information which is given in English language, which is given in somehow in terms of problem. We convert this problem into some model that is called mathematical model, and this model is called, इस मॉडल का नाम क्या होता है? क्या बोलते हैं इस मॉडल को? मैथमेटिकल मॉडल, लीनियर प्रोग्रामिंग Linear मॉडल, programming. LPP मॉडल. एलपी मॉडल. लीनियर ऐसे एक्चुअली क्या है ना, LPP है, IPP भी है, एक इंटीजर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम भी है, गोल प्रोग्रामिंग भी है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग भी है, बहुत सारे तरह के हैं ये मॉडल. आपके यहाँ तो सिलेबस में एक ही है LPP. इसके अलावा इंटीजर प्रोग्रामिंग है, गोल प्रोग्रामिंग है, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, काफी सारे हैं. तो इसीलिए आप LPP बताएंगे. मैथमेटिकल मॉडल बहुत तरह के होते हैं, लेकिन आपको LPP भी बात करनी है. सो दिस इज द इंफॉर्मेशन गिवन टू अस एंड we are going to write this particular information into some model that is called LPP. तो बना लेंगे. समझ गए? समझ गए नहीं? अच्छा, Yes, sir. अब मुझे एक बात बताओ, यहां तक तो क्लियर है. इस मॉडल का स्ट्रक्चर क्या है? इस LPP मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होगा?
इस एलपीपी मॉडल का स्ट्रक्चर क्या होगा? स्ट्रक्चर बताते हैं इस तरह से, इट इज हैविंग कितने वेरिएबल है यहाँ पर? 3. कौन कौन से? X1, X1, X2, X1, X2, X3. x1, x2 एंड x3. कितने कंस्ट्रेंट्स हैं? 3. 3. ठीक है, तो 3 कंस्ट्रेंट 3 वेरिएबल. आपको अगर याद हो इससे पहले वाली क्लास में जो हमने मॉडल बनाए थे, दैट वाज 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट्स. दैट वाज हैविंग 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट. ये जो हमने बनाए थे ना, ये वाले, ये इसमें इसका स्ट्रक्चर क्या है? 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट, 2 वेरिएबल्स एंड 2 कंस्ट्रेंट्स. कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, ध्यान रखना स्पेलिंग, कभी कांस्टेंट लिख दो. कंस्ट्रेंट्स, ठीक है, 2 वेरिएबल 2 कंस्ट्रेंट्स, 3 वेरिएबल 3 कंस्ट्रेंट. ठीक है, और जरूरी नहीं है 2 और 3 हो, अनइक्वल भी हो सकते हैं. अगर आपको याद है तो मैंने एक क्वेश्चन आपको मॉडल बनाने के लिए दिया था, ये वाला, ये याद है? हमने मॉडल बनाया था एक. Yes, sir. Yes, sir. इस मॉडल में कितने वेरिएबल कितने कंस्ट्रेंट आए थे? 2 variable, 3 2 variables, constraints. 3 Variable 3 और constraints. constant 3. अच्छा, 2 वेरिएबल एंड 3 कंस्ट्रेंट्स. सो ये नहीं, 2 वेरिएबल्स एंड 3 कंस्ट्रेंट्स. ठीक है, क्योंकि यहां पर ये तीनों कंस्ट्रेंट्स हैं, 1 2 3, और वेरिएबल 2 ही हैं, प्लांट T1 एंड प्लांट T2. तो जरूरी नहीं है कि हमेशा इक्वल भी होंगे, अनइक्वल भी हो सकते हैं. 4 वेरिएबल 5 कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, 2 वेरिएबल 3 कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं, 3 वेरिएबल 4 कंस्ट्रेंट भी हो सकते हैं. सो दैट कैन बी अनइक्वल. बट मॉडल में वेरिएबल और कंस्ट्रेंट कितने कितने ये ठीक ठीक आइडेंटिफाइबल होने चाहिए, सो दैट वी कैन सॉल्व इट. क्लियर? कैन वी मूव अहेड? Yes, sir. Yes, sir. Now the task is, now at this moment of time we are comfortably we can comfortably say like this, that we can formulate the problem given to us in some mathematical model. ठीक है, हम यहां पर कोई भी मैथमेटिकल मॉडल बना सकते हैं. बना सकते हैं नहीं? Yes, sir. है ना. बाकी तो खैर अभी आगे जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे और डिस्कस करेंगे. तो नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज, नाउ वी आर गोइंग टू, yes, now our task is to solve this particular model. अभी हमने सॉल्यूशन नहीं किया है ना, याद है? अभी हमने सॉल्यूशन नहीं किया है, अभी हमने सिर्फ मॉडल का फॉर्मुलेशन किया है. ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. है ना. अब हम सॉल्यूशन करने वाले हैं. ध्यान से सुनना सब लोग, क्योंकि ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है. फॉर्मुलेशन भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है, बट फॉर्मुलेशन के बाद सॉल्यूशन भी अपने आप में बड़े इंपॉर्टेंट है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपके सामने कोई ऐसा प्रॉब्लम दिया हो तो उसको आप इस तरह से कन्वर्ट कर लें. ठीक है, इस वर्ड प्रॉब्लम को इस मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर लें, देन वी कैन सॉल्व इट यूजिंग सम अवेलेबल मेथड्स. ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस. अच्छा, एक बात बताइए, सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मॉडल. सॉल्यूशन ऑफ एलपीपी मॉडल, देखिए एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें 2 मेथड है. इफ नंबर ऑफ वेरिएबल equals to 2, then we can use, क्या लिखा है मैंने? Graphical method. And if variable greater than equals to 2, then we can use simplex method. सिंपल सीधा सीधा वेरिएबल पे डिपेंड करता है और किसी चीज पे नहीं. इसीलिए मैंने कहा स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, कितने वेरिएबल हैं, कितने कंस्ट्रेंट्स हैं. कंस्ट्रेंट से फर्क नहीं पड़ता, वेरिएबल से फर्क पड़ेगा. इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2, देन यू कैन यूज ग्राफिकल. ठीक है, और सिंप्लेक्स तो कभी भी किसी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं. सिंप्लेक्स तो किसी भी सिचुएशन में यूज कर सकते हैं, लेकिन ग्राफिकल तभी यूज कर पाएंगे जब नंबर ऑफ वेरिएबल 2 होंगे, यानी x1 एंड x2. ऐसे वाले जितने प्रॉब्लम है, कंस्ट्रेंट कितने भी हो, कंस्ट्रेंट 3 हो 4 हो, फर्क नहीं पड़ता. अगर वेरिएबल 2 है
तो ही ग्राफिकल मेथड यूज कर पाओगे, अदरवाइज ग्राफिकल मेथड आप यूज नहीं कर सकते। ये चीज क्लियर है? ये लिख लो कहीं पर कि मॉडल का जब सॉल्यूशन करने जाएंगे तो आपकी पहली कंडीशन ये है कि वेरिएबल कितने हैं। इफ नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज 2 देन यू कैन यूज ग्राफिकल मेथड, इफ इट इज 2 और मोर देन 2 देन सिंप्लेक्स मेथड। ठीक है, चलिए तो ग्राफिकल मेथड से शुरुआत करते हैं। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ये कौन से प्रॉब्लम से सॉल्व हो जाएगा, कौन से मेथड से सॉल्व हो जाएगा? ग्राफिकल से भी हो सकता है, सिंप्लेक्स से भी हो सकता है। ठीक है, तो हम दोनों से करेंगे। हाँ, तो हम दोनों से करेंगे, पहले आज ग्राफिकल से करेंगे, फिर 1-2 क्लास बाद सिंप्लेक्स से भी करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन सबको क्लियर था? ये क्वेश्चन क्या था? ये वाला क्वेश्चन था, याद है? 2 प्रोडक्ट थे, 2 रिसोर्स हैं, रॉ मटेरियल और लेबर आर। रिसोर्स की अवेलेबिलिटी मालूम है 60 kg और 96 लेबर आर। ठीक है, एक से प्रॉफिट कितना होता है, दूसरे से प्रॉफिट कितना होता है, हाउ मेनी प्रोडक्ट टू बी प्रोड्यूस्ड, दैट इज ड्यू टू बी फाइंड आउट। ये क्वेश्चन क्लियर है सबको? तभी हमने ये बनाया था, Yes, sir. है ना? यस चलिए तो इसको शुरुआत करते हैं इसको सॉल्व करने की। सिंस नंबर ऑफ वेरिएबल इज 2 वी कैन यूज ग्राफिकल मेथड। तो फर्स्ट ड्रॉ अ ग्राफ x1 इधर लेंगे और x2 इधर ले लेंगे। ठीक है, आपने अगर xy लिए तो xy ले लो, x1 x2 लिया x1 x2 ले लो, कुछ और लिया तो कुछ और ले लो, जो भी आपने प्रॉब्लम में यूज किए मॉडल में वही लेंगे वेरिएबल्स। ठीक है, एक बार मैं लिख लेता हूं प्रॉब्लम क्या था। मैक्सिमाइजेशन ऑफ z इज इक्वल्स टू 40x1 प्लस 35x2 सब्जेक्ट टू 2x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल्स टू 60। फिर कितना था? तो 3x2 है ये। अच्छा 3x2 है, 2343। ये हमारा प्रॉब्लम है, इसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, जरा ध्यान से देखिए, सब लोग पेन पेपर पेंसिल लेके बैठे और मेरे साथ साथ चलते रहे। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल ड्रॉ दीज 2 कंस्ट्रेंट्स एज 2 स्ट्रेट लाइंस। ड्रॉ दीज 2 कंस्ट्रेंट्स एज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है या नहीं? ये अगर इसको ड्रॉ करेंगे तो स्ट्रेट लाइन आएगा या कोई और कर्व आएगा? स्ट्रेट लाइन। Straight line. स्ट्रेट लाइन ही आएगा, है ना? तो स्ट्रेट लाइन ही आएगा, स्ट्रेट लाइन से ड्रॉ करेंगे। अब ड्रॉ कैसे करते हैं जरा वो देखना एक बार। पहले मुझे ये ड्रॉ करना है, मैं बहुत बेसिक से समझा रहा हूं, हालांकि ये बताने वाली बात नहीं है, ड्रॉ तो कोई भी कर सकता है इसको। तो फर्स्ट पुट x1 इक्वल टू 0, फाइंड x2 एंड देन पुट x इक्वल टू x2 0, फाइंड x1। इसी इक्वेशन में हमें 2 पॉइंट्स निकालने हैं, क्योंकि कोई भी इक्वेशन, कोई भी एक स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए हमें 2 पॉइंट्स चाहिए, ताकि हम दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर लें और स्ट्रेट लाइन बन जाए। इसीलिए हम 2 पॉइंट्स निकाल रहे हैं। कैसे निकाल रहे हैं? पुट x1 इक्वल टू 0 देन फाइंड x2। कितना आएगा इस इक्वेशन में अगर हम x1 को 0 रख दें तो? 20. और अगर x2 को 0 रख दें तो x1 कितना आएगा? 30. 30। तो ये 2 पॉइंट्स मिल गए। 2 पॉइंट्स ग्राफ पे प्लॉट करो। कौन कौन से हैं? 30 0 एंड 0 20। तो 30 0 इधर, ठीक है, और 0 20 इधर। ग्राफ पेपर है तो ठीक है, नहीं भी है तो भी आप इसको लॉजिकली पॉइंट करके रख सकते हैं। नाउ ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स, ज्वाइन दीज 2 पॉइंट्स एंड दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। ये क्लियर है? देखिए कैसे ड्रॉ किया है मैंने। हाँ जी, सबको क्लियर है? यस सर। यस सर Now Yes, similarly we draw the second equation. मैं इसको रब कर रहा हूं। Similarly we draw the second equation. चलिए सेकेंड इक्वेशन क्या है? 4x1
3x2 इक्वल्स टू 96। सेकेंड इक्वेशन है। अब यहां एक बार x1 को 0 रख दो, एक बार x2 को 0 रखो, बताओ कितना आता है इसी इक्वेशन में। when x1 24 or 32. when x1 0 x2 is 22. 32, and when x2 0 x1 is 24, 24. 2 पॉइंट्स मिल गए, दोनों पॉइंट्स को ग्राफ में ज्वाइन करें ध्यान से। अब जरा ध्यान से, क्योंकि लॉजिकली आपको देखना चाहिए कौन सा वैल्यू कहां होगा। फर्स्ट जैसे 24 0 है, 24 0 30 के बाद होगा 30 से पहले होगा, बताइए। सर पहले, पहले होगा ना, तो आप यहां लिख देंगे 24 0 और दूसरा पॉइंट है 032, वो इधर होगा। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ दिस इज क्लियर हाउ वी ड्रॉ दिस टू पर्टिकुलर कंस्ट्रेंट्स। तो जितने Yes, sir. कंस्ट्रेंट्स हैं, जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं, उनको एज ए स्ट्रेट लाइन हम प्लॉट कर लेंगे। 3 कंस्ट्रेंट होंगे तो 3 लाइन बन जाएंगी, 2 कंस्ट्रेंट होंगे तो 2 बनेंगी। ठीक है, तो ये काम तो हो गया। अब मैं इसको रब कर देता हूं। भाई जिसको लाइन ड्रॉ करना नहीं आता वो समझ में आ गया होगा ना कैसे करते हैं। कोई भी 2 पॉइंट्स ले लीजिए और उसके बाद, अच्छा अब नेक्स्ट टास्क ये है कि हमारा सॉल्यूशन कहां होगा। सॉल्यूशन के लिए हमें 4 स्पेस दिख रहे हैं। एक स्पेस तो ये दिख रहा है, इसका नाम रख देते हैं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए P, इसका रख देते हैं Q, इसका रख देते हैं R, ये है S। ठीक है, हमारा सॉल्यूशन कहां होगा, P में होगा, R में होगा, Q में होगा, S में होगा, ये पता करना है। ठीक है, तो कैसे पता करते हैं वो देखना जरा, लिखिए जरा कि अगर लेस देन इक्वल्स टू है, ये जो डायरेक्शन है, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट, नाउ दिस डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट। इफ दिस डायरेक्शन इज लेस देन, तो इसका जो सॉल्यूशन होगा वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। टुवर्ड्स ओरिजिन, ओरिजिन कहां है, इधर है, इसको बोलते हैं ओरिजिन। एंड इफ इट इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू, देन अवे फ्रॉम ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। ठीक है, टुवर्ड्स ओरिजिन, अवे फ्रॉम ओरिजिन। क्लियर? कैसे, जरा एक बार देखो, मान लीजिए, एक बार फिर से दोबारा हाँ क्या बताना है सर, एक बार ये फिर से बता दो जो अभी आपने हाँ, बताया। मैं इसको एग्जांपल से बता रहा हूं। देखो मान लीजिए आपके पास एक ये इक्वेशन है और ये इक्वेशन लेस देन वाली है। ठीक है, तो इसका फीजिबल, इसका सॉल्यूशन कहां होगा, इधर की तरफ होगा, ओरिजिन की तरफ। ठीक है, और एक इक्वेशन ऐसी है जो ग्रेटर देन है, तो इसका सॉल्यूशन बाहर की तरफ होगा। बताओ, ये बात समझ में आ गई? जो मैंने ऊपर लिखा है उसको आपको बता दिया। अब जैसे हमारे दोनों कंस्ट्रेंट हैं, दोनों कंस्ट्रेंट लेस देन है, दोनों ही कंस्ट्रेंट लेस देन है, तो दोनों के लिए आप ये वाला मेथड यूज करेंगे, यही वाला ऑपरेशन यूज करेंगे। बताइए, लेस देन है तो ओरिजिन की तरफ, और ग्रेटर देन है तो ओरिजिन से बाहर की तरफ। ठीक है, यस सर। है ना? अब ये बताओ, yes sir, इक्वेशन 1, सिर्फ इक्वेशन 1 को देखो आप, ये वाला कंस्ट्रेंट देखो, ये वाला 1। ठीक, 1 कैसा है, लेस देन है, yes sir, तो 1 जब लेस देन है, हाँ Yes, 1 जब लेस देन है तो इसका मतलब 1 से ओरिजिन की तरफ देखो। आप मान के चलिए कि सिर्फ 1 ही ड्रॉ किया हुआ है, मैंने 2 ड्रॉ नहीं किया है। तो 1 से ओरिजिन की तरफ देखोगे तो कौन कौन से आपको रीजन ऐसे दिखेंगे जो जहां पर सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा, sir P P and and R, R. क्योंकि 1 लेस देन है तो आप P और R. P और R, यानी सिर्फ 1 के हिसाब से देखें तो मेरा सॉल्यूशन P और R में होना चाहिए। ठीक है, और अगर मैं 2 के हिसाब से देखूं, जो भी वो भी लेस देन है, अब 2 को देखो, 2 P के and रेस्पेक्ट Q. में 2 से ओरिजिन की तरफ देखो, कौन कौन से दिख रहे हैं आपको, P and Q, yes sir, है ना? दोनों में कॉमन क्या है, P। P, इसका मतलब जो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो इधर होगा,
and this is called feasible region. ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. दिस इज कॉल्ड feasible region. मतलब हमारा जो सोल्यूशन होगा ना वो इस रीजन में कहीं होगा. हम सारी जगह नहीं ढूंढ पाएंगे. कहाँ ढूंढेंगे हम? हमें स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि मेरा सोल्यूशन कहाँ एग्जिस्ट करेगा. ठीक है, तो ये वही पी वही रीजन है जहां पर दोनों कंस्ट्रेंट एक साथ सेटिस्फाई कर रहे हैं. इसका मतलब ये भी है कि जैसे हमारा क्वेश्चन था, इस कंस्ट्रेंट 1 क्या है? रॉ मटेरियल का रिसोर्स है. कंस्ट्रेंट 2 क्या था? Labor hours. लेबर आवर्स. इसका मतलब यह है कि प्रोडक्ट तभी बनेगा जब रॉ मटेरियल भी हो और लेबर आवर भी हो. ठीक है, इसीलिए मैंने कहा कि दोनों में से कॉमन स्पेस ढूंढो कहां पर है. मान लीजिए मैं कहता कि भाई मुझे आप बताना जरा, मेरा क्यू जो है वो फीजिबल रीजन में क्यों नहीं है? क्यू फीजिबल रीजन में क्यों नहीं है? क्योंकि सर वो फर्स्ट इक्वेशन किसी में है, किसी में नहीं है, फर्स्ट में नहीं है. नहीं, और ऐसे नहीं second बोलोगे. में है. किसी में नहीं. आप बोलोगे कि 2 को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 1 को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना. 2 के लिए तो ओरिजिन की तरफ है लेकिन 1 से तो Yes. बाहर की तरफ है. ये कंस्ट्रेंट 1 से देखो तो आप बाहर की तरफ जा रहे हैं ना. सर लेबर आवर्स हैं लेकिन रॉ मटेरियल नहीं है. बिल्कुल. अच्छा, सिमिलरली आर क्यों नहीं है मेरा फीजिबल रीजन में? क्योंकि आर इक्वेशन 1 को, इनइक्वालिटी 1 को या कंस्ट्रेंट 1 को सेटिस्फाई कर रहा है लेकिन 2 को नहीं कर रहा है. आर की पोजीशनिंग देखो, आर की पोजीशनिंग 1 से अंदर की तरफ है लेकिन 2 से बाहर की तरफ है ना. तो अल्टीमेटली ये समझ में आया कि हमारा फीजिबल रीजन ये पी है. बस ये बात समझ में आनी चाहिए. ये बात समझ में आ गई कि हमारा फीजिबल रीजन पी कैसे है. ठीक है. Yes, sir. अच्छा, अब एक टेबल बनेगी. उस टेबल में लिखोगे आप कॉर्नर पॉइंट्स. x1 लिखोगे, x2 लिखोगे और लिखोगे z विच इज 40x1 प्लस 35x2. ठीक है. और कितने कॉर्नर्स कितने हैं ऐसे? फीजिबल रीजन का जो कॉर्नर है ना, ये जो फीजिबल रीजन बन रहा है, देखिए मैं दोबारा इसको मार्क कर रहा हूं. ये जो रीजन बन रहा है, आप एक बार मेरे मार्कर देखिए ध्यान से. ये जो रीजन बन रहा है, जो फीजिबल रीजन है ना, इसके कितने कॉर्नर हैं? एक कॉर्नर तो ये है, एक तो ये ओ, 4. एक ये है ए, एक ये है बी और एक ये है सी. बताइए, है ना. Four. ओ ए बी सी, ओ ए बी सी. ये बात समझ में आ गई? कॉर्नर्स जो हैं, कॉर्नर्स, कोने जो हैं, कोने, फीजिबल रीजन के कॉर्नर्स जो हैं. देखो ऐसे ऐसे देखो, कुछ ऐसा दिख रहा है आपका फीजिबल रीजन. ऐसे ही है ना. इसको मैंने ए लिख दिया है, इसको बी लिख दिया है, इसको सी लिख दिया है, इसको ओ लिख दिया है. ऐसे दिख रहा है ना फीजिबल रीजन. तो उसके कॉर्नर्स जो है, कॉर्नर्स को सिर्फ मैं लिस्ट में डालूंगा, बाकी किसी को नहीं डालूंगा. ठीक है, कॉर्नर्स. अच्छा, कॉर्नर ए, कॉर्नर ओ पर x1 x2 कितने हैं? 0 0. 0 0. और ओरिजिन है वो, तो ओरिजिन है तो 0 0 है ही वो. x भी 0 और x2 भी 0. तो इन दैट केस z इज ऑल्सो 0. नाउ व्हाट इज द पोजीशनिंग ऑफ a? a कहां पर है और a के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 and 20. So 0 and 20. 0 and 0 20. एंड 20. ये 0 एंड 20 की वैल्यू z में रखो ऊपर, यहां पर 0 एंड 20 की वैल्यू रखो. बताओ z कितना आ रहा है? 700. 700. 700. c के कोऑर्डिनेट बताओ, c के. 24 and 0. Sir 24 and 0. 24 एंड 0. तो z कितना आएगा? 960. 960. किसी को पूछना भी कैसे आया 960? 24 और 0 जो कि कॉर्नर है इस फिजिबल रीजन का, एक सी कॉर्नर है. तो 24 और 0 की वैल्यू को हमने z में डाल दिया. ठीक है, तो 40 इंटू 24 प्लस 35 इंटू 0, ये जो है ना z, इसमें रख दीजिए x1 x2 की वैल्यू को, 24 और 0. नाउ b, सेकेंड थर्ड पॉइंट इज b, ये जो कोऑर्डिनेट है. अब b जो है ना, b दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है.
बी पॉइंट दोनों के इंटरसेक्शन से बन रहा है, इंटरसेक्शन यानी जहां पे दोनों लाइंस कट कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर इस तरह के कोऑर्डिनेट निकालने हो, अगर इस तरह के कोऑर्डिनेट निकालने हो तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करते हैं? 2x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 60 और 4x1 प्लस 3x2 इक्वल टू 96। दोनों को सॉल्व कर लेंगे। माइनस 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 ये कैंसिल, तो माइनस 2x1 इक्वल्स टू माइनस 36, x1 हो गया 18। बताओ ये बात समझ में आ गई? Yes, sir. Yes, sir. इस 18 को हम यहां रख देंगे, इस 18 को इधर लिस्ट में रख दिया। नाउ व्हाट इज x2? 8. अब x1 की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में डाल दो, यानी x1 जो 18 आया ना अपना, इसको इक्वेशन 1 में या 2 में किसी में भी डाल दो, किसी में भी, तो यू विल गेट x2 एज 8। तो इसको यहां रख दिया 8। और इन दिस केस व्हाट इज z? 1000. 1000। ठीक है, 1000। तो टेबल समझ में आ गई कैसे बनाई है मैंने? यस सर। है ना? तो सबसे पहले मैंने क्या किया, चलो अभी तो समराई बाद में करते हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये इसका क्या हुआ, ये जो हमने यहां लिखा था मैक्सिमम, क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा था ना, अभी तक तो उसका यूज ही नहीं करा हमने, अभी तक इसका यूज ही कहाँ कराया ना, मैक्सिमम ना मिनिमम। नाउ द टाइम, नाउ इज दिस इज द टाइम टू फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू आउट ऑफ दीज वैल्यूज। मैक्सिमम कौन सी है वैल्यू? 1000. 1000. मैक्सिमम वैल्यू इज दिस वन। ठीक है, so it is advised to this company that they should produce product A 18 quantities, product A बनाओ 18 यूनिट और B बनाओ 8 यूनिट, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो होगा 1000 रुपीज, विच इज मैक्सिमम। मैक्सिमम मतलब किसी भी हालात में, किसी भी सिचुएशन में, इतने रिसोर्सेज के साथ, इतनी इंफॉर्मेशन के साथ इससे ज्यादा प्रॉफिट नामुमकिन है। दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन, बेस्ट सॉल्यूशन, दिस इज ऑप्टिमल सॉल्यूशन। ठीक है, बात समझ में आ रही है नहीं? Yes, sir. अब देखिए बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते थे इसके, मैंने आपको एक दो वहां भी दिखाए थे, यहां पर भी सोल्यूशन हो सकता है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां, इधर इधर इधर, बहुत सारे सोल्यूशन हो सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन हो सकते हैं, इनफाइनाइट, इस हर जगह एक सोल्यूशन हो सकता है, लेकिन ऑप्टिमल सोल्यूशन जो है वो ये है। और ऑप्टिमल सोल्यूशन हमेशा कॉर्नर पे निकलता है, ध्यान रखना, कॉर्नर्स पे, इसीलिए हमने कॉर्नर पॉइंट की लिस्टिंग की है, अदरवाइज को तो करना नामुमकिन नहीं होता इतने सारे इनफाइनाइट पॉइंट्स को देखना। तो एक थ्योरम है, उस थ्योरम को तो खैर हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे इतना, लेकिन थ्योरम, वो थ्योरम कहती है कि फीजिबल रीजन के कॉर्नर पर ही आपको ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलेगा। लिख लो एक बार, लाइन, एक लाइन में लिख लो, ऑप्टिमल सॉल्यूशन, the optimal solution of LPP, the optimal solution of LPP will always exist on corner points of feasible region, always exist on corner points of feasible region।